रुकेगा नहीं. So my dear friends, अंतःकरण शुद्धि 14th day. Welcome to all of you. बहुत दिन से हमारा अंतरेंद्रियों को कैसा पकड़ना, उसके लिए क्या जरूरत है, एक साधक को क्या चाहिए, how you can become a great seeker and great master. We are taking very good classes. So let us start with meditation for half an hour and then we will go to the section today's. Okay? Thank you, friends. Let us start meditation with complete relax mode. इस प्रेजेंट मोमेंट पर आना, थोड़ा समय तक सब चीज छोड़ दो. Leave everything and be in the present moment. Complete relax, my dear friends. Complete relax. कितना आराम से बैठकर, कितना आराम से मन को श्वासों के ला सकता है, उतना अच्छा रहेगा. ध्यान का समय खुशी से शुरू करो, आनंद से. With great gratitude, love, start the meditation. कितना खुशी में रहता है उतना अच्छा मेडिटेशन होगा. Your thoughts are your actions. So be happy, my dear friends. Be gratitude for the day, for the great opportunity we got today with the help of so many masters. Be thankful for each and everything what we had today. ये सब क्या क्या है हमारे पास, ये सब के लिए एक कृतज्ञता भाव से, आनंद से मेडिटेशन शुरू करिए. Thank you for each and everything. Thank you for this great breath, great wisdom. Get yourself relax. और मन को धीरे धीरे श्वासों के ऊपर रखे. Let us do complete deep silent meditation. Deep and deep silence. बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों. Slowly come ourselves from the outer world to the inner world. Antaryanam. Journey inward. Deep and deep silence, my dear friends.
No thoughts, my dear friends. Balance of life is everything. Let us balance each and every day with inward journey for some time. थोड़ा समय हर दिन खुद के लिए. To understand what is attachment and how to detach internally, meditation is the first step. Let us attach to ourselves by detaching the outer world. Deep silence, my dear friends. अद्वैत से सब कुछ समझ जाएगा दोस्तों. Let us come to the oneness of this body, mind and soul. कुछ भी अलग नहीं, एक होना है. ये शरीर मन से, मन श्वासों से, ये श्वास आत्मा से एक होना है. Let us come deep into this meditation, my dear friends. बिल्कुल विचार नहीं.
Friends, we are the creator of our own reality. Nishabdam Brahma Uchyate. The more we go into the silence, the more we become that Brahma Tattva. Antarmukha Samaradhya Bahirmukha Sudurlabha. The deeper we understand inner world, the greater we see the outer world. Let us connect to our breath. इस श्वासों के साथ रहकर सब कुछ समझ सकता है. ముక్కులోని గాలి ముక్తికి మడిదారి. Let us catch this breath and slowly travel into that truth, that liberty, the freedom of your own self. Let us be deep silence, my dear friends. बिल्कुल विचार नहीं, सोच नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ रहो. उस शून्य स्थिति पर रहने के लिए कोशिश करिए. For half an hour, let us do deep and deep meditation.
Relax in external world and relax in internal world. What is the meaning of relax? Being silent. Let us become silence everywhere. No work to the body, no work to the mind. Practice and practice and practice and practice. Make everything perfect. The more we practice, the more we become free. बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों. हर रोज अभ्यास करना. किस किस समय हम फ्री है उस समय अभ्यास करते रहो. प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट. हर दिन करने से वो चीज अपना हो जाएगा. किसी भी चीज प्रैक्टिस करने से थोड़ा दिन हम वैसा बन जाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस एवरी डे. थोड़ा समय अपने लिए, खुद के लिए. लास्ट 10 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ श्वासों का ऊपर ध्यान.
लास्ट 5 मिनट्स। सिर्फ और सिर्फ सांसों का ऊपर ध्यान दोस्तों। श्वास का समय कोई भी मंत्र का जप का जरूरत नहीं, कुछ भी विजुअलाइजेशन का जरूरत नहीं, कुछ भी संकल्प और विकल्प को सोचने का जरूरत नहीं, सब चीज छोड़ दो। लेट योर माइंड बिकम completely silent by connecting the breath. Last 2 minutes, my dear friends. Last 1 minute. Thirty seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए. Completely relax and खुशी से
आनंद से दोनों मांग खोलिए। Yes, thank you, friends. So, thank you, ma'am. So, welcome to everybody. तो सब लोग रेडी है? जी मैडम जी। या आज 14th डे है हमारा अंतःकरण शुद्धि में। आज तक हम बहुत विषय के बारे में चर्चा किया। हमारा एक साधक के लिए, एक मुमुक्षु के लिए किसको लिबरेशन चाहिए? कौन समझ गया कि आई एम इन द केज ऑफ बॉन्डेजेस ऑफ माई ओन थॉट्स? किसको ये चीज समझ गया? तुरंत उनको बाहर आने का मन रहता है। उनको किसको बाहर आकर सब चीज को पकड़ने का मन आ गए? वो लोग मुमुक्षु मीन्स सीकर, सर्चर, द पर्सन हु सर्चेस फॉर द ट्रूथ। असली रास्ता क्या है वो ढूंढने का इच्छा आ जाएगा। जब असली रास्ता को पकड़ने वाला है तब हमारे पास क्या क्या रहना, क्या क्या नहीं रहना, ये सब हम बहुत क्लासेस से सीखते रहे। और हाउ टू प्रैक्टिस दोस थिंग्स, वो चीज कैसा प्रैक्टिस करना, अपने को हम कैसा पकड़ना। 14 डेज से अलग अलग तरीका में अलग अलग मास्टर से भी हम ये सब्जेक्ट सुनते जा रही है। और आज फिर एक नया पॉइंट, कैसा ये चीज के बारे में हम आगे जाएगा। और कितना लोग रात का समय पूरा सुबह से रात तक उनका कर्मों का बारे में पूरा क्लैरिटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? इज दैट एवरीबडी हु आर थिंकिंग? सोने के पहले हम सोचा है एक होमवर्क, बढ़िया सा वर्क, कि सुबह से रात तक मैं क्या क्या किया, किधर किधर पॉजिटिव आ गया, किधर किधर फेल्यूर आ गया, कितना चेंज हुआ हमारे अंदर, कितना बदलाव आया है खुद का। इतना नॉलेज के बाद आज सुबह से रात तक किस पॉइंट्स याद आ गया, मैं गलत किधर हो रही है, और ये सत्य याद आकर हमको फिर रास्ता में लाया और नहीं लाया। ऐसा प्रैक्टिस हर रोज करने का समय, आई गारंटी यू विद इन शॉर्ट पीरियड यू विल बिकम गोविंदा, गोपाला। यू विल बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन इंद्रियास, योर ओन सिस्टम। बट ये चीज रहना है, एक इंक्वायरी कमिटी अपने आप रहना है। हम लास्ट क्लास में उसी के बारे में बात किया। एक इंक्वायरी कमीशन रखो, क्वेश्चन योरसेल्फ एवरी डे। सो आशा करता हूँ ये सब लोग कर रहे, नहीं कर रहे तो आज से शुरुआत करो। ओके जी हाँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक चीज समझ में आ गई तो बाकी सब चीज बदलेगा। किस व्यक्ति को मालूम रहता है कि आई एम इनसाइड द सर्किल, एक सर्किल के अंदर हूं, वो व्यक्ति सर्किल के आउटर आने का प्रयास करेगा। जब तक हमको नहीं मालूम है हम अंदर है, तब तक हम बाहर आने के लिए कोशिश नहीं करता। दैट्स व्हाई सभी मास्टर्स, ऑल द ग्रेट पर्सनालिटीज, ऑल द ग्रेट गुरुस, एवरीबडी हमको एक ही विषय के लिए बहुत बार बता दिया कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। अपने वास्तव के लिए हम ही खुद कारण है, एंड हम ही उस वास्तव को तैयार कर रहे, कोई दूसरा नहीं है। जब ये चीज समझ में आ गया तो फर्स्ट थिंग हमारे अंदर क्या बदलेगा कि दूसरों को चेंज करने का। हर बार इंसान क्या करता है, दूसरों को बदलने का कोशिश करता है।
क्योंकि ये चीज भूल गए कि हम बार बार ये उंगली को दूसरों के ऊपर रखकर आप बदलो आप बदलो आप बदलो बोलते रहेगा, और 3 उंगलियां हमको लिटरली बता रही है कि आप पहला बदलो। 3 उंगलियां दूसरों को दिखाने के पहले पहला आप, फर्स्ट यू देन दैट, एवरीथिंग इज नोटेड। भगवान मीन्स चित्त, ये चित्तगुप्त के पास सब नोटेड हो रही है। ज्यादा होशियार मत रहो, दूसरों को बदलने का प्रयास बंद करो, अपने को देखते रहो। ये चीज ऐसा दिखा रही है, 3 उंगलियां अपने तरफ दिखा रहे हैं। मतलब फर्स्ट इंटरनली यू फर्स्ट चेक योर सेल्फ, देन द अदर्स। इधर ठीक नहीं हुआ, दूसरों को बताते रहेगा, हम बताते रहेगा, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि हम भूल गया दैट इस वास्तव को हम क्रिएट किया, इसको हम ही चेंज कर सकता है। तब वो वास्तव को वो क्रिएट किया, वो ही बदल सकता है। एक व्यक्ति दूसरों को चेंज करना असंभव है, संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक जानवर है, ये जानवर का पूंछ ऊपर है, उसको ठीक करने के लिए सोचा 1 साल उनको एक लकड़ी लाकर पूरा उनका टाइल को अच्छे से बांध कर रखो। 1 साल के बाद वो लकड़ी निकाल दो, फिर क्या हो जाएगा? 1 साल फिर वो ऐसा ऊपर जाएगा, उसका टाइल फिर ऊपर ही जाएगा। एक डॉग को लो, उनका टाइल को सीधा करो, एक लकड़ी रखो, उसको बांध दो, 1 साल छोड़ दो, फिर 1 साल के बाद निकालो, क्या हो जाएगा? फिर वही हो जाएगा। तो हमारा बोलने से कुछ बदलेगा नहीं, बट वो लोग कुछ सोचने से बदल जाएगा। कोई भी खुद सोचा अरे मैं ऐसा क्यों हूं, क्वेश्चन खुद के लिए आ गया, मैं ऐसा क्यों हूं, तब बदल जाएगा। इसलिए स्वधर्म को पालन करना है। इस स्व अंदर से क्या आ गया, वो चीज खुद को इंसान को बदलने का हेल्प करेगा। बट दूसरों क्या करता है, सिर्फ दिखाने के लिए, बट वी कांट चेंज देम अंटिल एंड अनलेस दैट पीपल थिंक। सिर्फ हम डेटा दे सकता है, बेटा चेंज बेटा चेंज, बट वो लोग सोचे तो वो हो जाएगा, हम बोलने से नहीं होगा। फर्स्ट ये पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। ये पॉइंट को हम थोड़ा अंदर, वशिष्ठ जी ने बोलता है कि हम सब किधर है, एक समृद्धि का अंदर चलते रह रहे, एक समृद्धि, विश्व समृद्धि से भर गया। एक कहानी से बताऊंगी, तब आपको क्लैरिटीली समझ में आ जाएगा। एक बिजनेस पर्सन है, एक व्यापारी। वो व्यापारी क्या, उनको पैदल से एक तिरुपति मंदिर जाने का सोचा है। बहुत दूर से पैदल से चलते रह रहे, बहुत थक गया। थक कर क्या किया, एक बड़ा सा वृक्ष है, वो वृक्ष का नीचे थोड़ा आराम करने के लिए सोचा, और उधर थोड़ी देर बैठने के लिए। और वो वृक्ष क्या है कि उधर एक महायोगी ने तपस्या किया वो वृक्ष का नीचे, इसलिए वो वृक्ष क्या है, एक कल्प वृक्ष। हमको क्या चाहिए वो देने वाला वृक्ष क्या है, कल्प वृक्ष। कामधेनु कल्प वृक्ष बोलता है ना, ऐसा वो कल्प वृक्ष जैसा वो सिद्ध आ गया वो वृक्ष को। इसलिए वो वृक्ष के नीचे कोई भी कुछ भी सोचे तो वो हो जाएगा। ये स्टोरी क्यों बता रही है कि हम कैसा क्रिएट कर रहे, ये चीज को समझने के लिए ये स्टोरी बहुत हेल्प करेगा हमको। ध्यान से सुनो। इसके नीचे बैठ गया व्यापारी ने, सो इतना दूर से तक कर वो चलते आ रही है, और उनको क्या लगा थोड़ा पानी है तो अच्छा रहेगा, तो पानी आ गया, पानी पी लिया। और पानी पीने के बाद भूख लगा है,
बहुत बढ़िया सा खाना मिले तो ना ऐसा जगह में, वाओ। तो खाना आ गया, खाना भी खा लिया, उसको आश्चर्य लग रहा है बट खुशी भी हो रही है। खाना खाने के बाद क्या होता है, नींद आता है। वो सोचा अच्छा से नीचे बिस्तर वो है तो आराम से सो सकता हूँ। ओके, नींद आ गई है ना, आराम से सो सकता है बोलने से वो भी व्यवस्था हो गया। वो सोकर सोचा अरे मेरे साथ मेरा पत्नी है तो कितना अच्छा रहेगा, मेरा पत्नी भी बच्चों भी सब लोग इधर ही है तो मस्त रहता है। वो भी आ गया अचानक, एकदम होश में आकर डर गया। ये क्या है, क्या सोच रहे वो आते रह रहे, शायद ये कोई भूत है क्या। पत्नी को बच्चों को ये सब देखकर अरे भूत है ये शायद, इमीडिएटली वो कैसा बदल गया, पत्नी आया है वो भूत जैसा बदल गया। अरे ये भूत है, ये मुझको खाएगा सोचने से उनको खा लिया। और हम भी वैसा वृक्ष के नीचे है, वो है यूनिवर्स। इस यूनिवर्स, इस अनंत विश्व एक कल्प वृक्ष जैसा है। उसके नीचे हम बैठकर कैसा कैसा सोच कर रहे, देखो हम भूल गया हम कल्प वृक्ष के नीचे है, हम क्या सोचा वो हो जाएगा, कैसा सोचा वैसा हो जाएगा, ऐसा बात ही भूल गया। और हम क्या करते रह रहे, सब अलग 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 सोच, एक सोच भी ऐसा नहीं। हम पहला चाहत सोचेगा, ये चाहत का आने के पहले फिर दूसरा सोचेगा, चीची नहीं नहीं ये गलत है सोचेगा, फिर दूसरा सोचेगा, बदलते 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 रह रहे, वो क्रिएट होते 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 जा रही है। ठीक है पत्नी आ गया, वो संतुष्ट हो सकता है ना, नहीं ये भूत है, फिर विकल्प आ गया, डाउट आ गया, फिर वो डाउट क्रिएट हो गया। वो डाउट में उनको फिर नकारात्मक सोच क्या आ गया, ये डर आ गया, ये खा सकता है क्या, वो खा लिया। अब किसका दोष है, सोचने वाला का और वृक्ष का, सोचने वाला का। क्यों, वी आर द क्रिएटर। हम सोचते रह रहे वैसा होते जा रही है, क्योंकि हम यूनिवर्स का नाम का एक कल्प वृक्ष के साथ बैठकर आराम कर रहे। यूनि वन, दिस इज ऑल वन। हम विष्णु शास्त्र नाम में बोलता है ना, फर्स्ट लाइन, विश्वम विष्णु वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। ये पूरा विश्व विष्णु का नाम से, हर एक भूत भव्य भवत प्रभु, लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग का अंदर आप ही है। यू आर द वन हु आर लीडिंग एवरीथिंग, द फर्स्ट लाइन सेंटेंस का मीनिंग मतलब एक का अंदर हम सब जीते जा रहे, किस चीज में सब वही है, उसका अंदर हम रह रहे। विश्वम विष्णु पूरा वही तत्व, एक ही पर्सन एवरीवेयर। तो ऐसा एक बड़ा सा कल्प वृक्ष के पीछे बैठकर हम क्या करते रह रहे, व्हाट इज नेस, हमको नहीं मालूम हम क्या सोच रहे भी, और वो क्रिएट होते जा रही है, क्योंकि वो वृक्ष तदास्तु देते रहेगा, उसको कोई नहीं कुछ भी नहीं मालूम, आप क्या सोचेगा वो देते रहेगा, उसका सिर्फ देना मालूम है। और हमको क्लैरिटी नहीं है कि क्या कैसा, वी आर नॉट ट्रेन्ड, हमको नहीं मालूम। हम क्या करता है, कुछ भी आ गया बोलते रहेगा, कुछ भी आ गया करते रहेगा, भूल गया हम ऐसा वृक्ष के नीचे है। सो हम क्या सोचता है, दूसरों में आकर हमको उद्धरण करना है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से बोलता है, स्वामी शायद हवा को पकड़ना आसान है, बट ये मन को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रही है, मैं क्या करूं बता दो। शायद मैं हवा को पकड़ सकता हूँ, मतलब हवा को पकड़ना ही इतना मुश्किल है, शायद वो भी इजी है, बट ये चंचल मन को पकड़ना और मुश्किल हो रही है। ओ कृष्ण भगवान,
यू आर द ग्रेट पर्सनालिटी, मैं क्या करूं बता दो। चलो इधर एक चीज हम थोड़ा ध्यान से देखेगा कि कृष्ण भगवान एक महायोगी है, तपस्वी है, ही इज गॉड। वो कुछ भी बोलने से हो जाएगा क्या? वो अर्जुन को आपका मन स्थिर हो ऐसा बोल सकता है ना? बी कॉन्सेंट्रेटेड, यू विल गेट दैट, यू आपको कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, आप मन स्थिर हो जाएगा। मेरा मन का ऊपर ध्यान नहीं लग रहा स्वामी, मैं क्या करूं बोल दिया, तब वो एक ऐसा विष देने से हो जाएगा। बट कृष्ण भगवान क्या बोला? उद्धरे आत्मानम आत्मानम अवसादयेत। स्वामी आपका आत्मा को आप ही उद्धरण करो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ना कृष्ण भगवान ही हाथ उठा दिया। देखो, उद्धरे आत्मानम, यू शुड प्रैक्टिस with your own self, your own practice। आपका प्रैक्टिस ही आपको कुछ दे देगा अर्जुन, मैं कुछ नहीं कर पाएगा। आपका आत्मा को आप ही उद्धरण करो। जब बुद्ध भगवान उनका लास्ट स्टेट में आनंद ने बैठकर बोलता है अब क्या करना है, आज तक आप हमको रास्ता दिखा दिया, हमको सत्य का मार्ग में लेकर गया, अब क्या करना है बता दो। तो बुद्ध भगवान का लास्ट वर्ड्स क्या है? अपो दीपो भवा। कृष्ण भगवान ने क्या बोला है? फिर बुद्ध भगवान ने वही बात बोला है कि अपो दीपो भवा, आपका दिया को आप ही जला दो। इट्स योर ओन पाथ, ये हमारा खुद का, हर एक व्यक्ति खुद का जर्नी है। सो ये हम ही उद्धरण करना और दूसरों कुछ नहीं कर पाएगा। वो कृष्ण परमात्मा हो, बुद्ध भगवान हो, दूसरों हो, हमारा पेरेंट्स हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो बता दिया तो भी हम क्या करता है? डिपेंडेंसी, आप कुछ करो, आप कुछ करो, आप कुछ करो, इधर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना भगवत गीता बता सकता है, अष्टावक्र गीता बता सकता है, वशिष्ठ गीता बता सकता है, उपनिषद में बता सकता है, कुछ भी बता सकता है, बट उद्धरण नहीं कर पाएगा। खुद करना है। एवरीबडी शुड चेंज बाय देमसेल्व्स, नोबडी कैन हेल्प अदर्स। रास्ता दिखा सकता है बट पकड़कर ले जाकर बिठा नहीं पाएगा। जैसा एक हॉर्स को पानी तक ले जा सकता है, घोड़ा को पानी पियो बोलने से वो नहीं पिएगा, उनको मन है तो पिएगा, हम बोलने से नहीं होगा। ऐसा ही अंदर से हम सोच गया कि मैं चेंज होना, ये चीज मेरा गलत है, ये चीज मुझको परेशान कर रहे, मेरा अंदर ये चीज ठीक नहीं है, वो सोचने से हो जाएगा, बट दूसरों बोलने से नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक पंडित है, ओके। वो पंडित बहुत अच्छा ध्यान में है, अच्छा से जप कर रहे, एक ऊपर थोड़ा नदी का पास वो बैठकर एक जगह में, किधर कोई नहीं है, उधर बैठकर ध्यान कर रहे, कुछ मंत्र जप वो सब कर रहे, बहुत अच्छा विधि विधान कर रहे। उधर एक धोती आया है, वो कपड़े साफ करने के लिए, वो पूरा पत्थर के ऊपर मारते रह रहे कपड़े को, और वो कपड़ा का गंदा पानी है ना, वो जाकर वो पंडित के ऊपर गिर गया। ये पंडित को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा आकर वो आकर बोला है, आप इतना कम पर्सन है, इतना लो ग्रेड पर्सन है, और आप इस गंदा पानी मेरे ऊपर हो रही है, और बहुत गुस्सा में है वो, और इतना पांडित्य हूँ मेरे पास इतना है, आप इतना भी मालूम नहीं कैसा व्यवहार करना। तो वो धोती ने बोला है, स्वामी जी मुझको नहीं मालूम आप है,
मुझको मालूम है तो मैं दूसरा जगह साफ करता था, मुझको मैं नहीं देखा, मुझको नहीं मालूम। तो अभी वो बहुत गुस्सा से है और उनको एक मारा। मारने के बाद उनका फील ये आ गया कि मैं इतना पंडित हूँ, उतना नीच पर्सन को टच किया बोलकर अभी मैं शुद्ध होना है सोचा। फिर जाकर एक थोड़ा दूर जाकर वो उस नदी में नहा रही है, क्योंकि ऐसा पर्सन को टच किया किसके पास ज्ञान नहीं है, मैं इतना पंडित हूं, टच किया। और वो ऐसा दूर में देखे तो वो धोती भी नहा रही है। इसको समझ में नहीं आई, अरे मैं नहा रही है तो एक है, मैं ऐसा अज्ञान को टच किया और वो क्यों नहा रही है, मुझको समझ में आना है बोलकर वो उधर धोती के पास जाकर आप क्यों नहा रही है बोलने से वो धोती बोलता है स्वामी जी आप पंडित है, ग्रेट पर्सन, आप उन्नति स्थिति में है, बहुत अच्छा बात है, आपको बहुत पांडित्य मालूम है, बहुत बढ़िया बात है, तो भी आपका अंदर ये क्रोध का चंडाल है ना, उसको टच किया मैंने। वो क्रोध एक, आप शायद ऊपर के लिए बहुत पंडित है, आपका अंदर क्रोध एक चंडाल है, नीच जाति वाला आपका अंदर है, उसको टच किया ना, इसलिए मैं नहा रही है। अब इधर पंडित कौन है, समझ गए? सो पंडित वो है धोती, क्योंकि इसका अंदर अंदर रख दिया, ये बाहर के लिए ऐसा दिख रहा है बट अंदर क्लियर है, इसलिए आपका अंदर वो टच करने के वजह से मैं नहा रही, आपको टच करने की नहीं, यूर ग्रेट पर्सनालिटी, आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट। इसलिए क्रोधम भवति संयोगः, मतलब ये सभी चीज के लिए कारण क्या है, मतलब ये क्रोध, एंग्री। जब ये पंडित रियलाइज किया उसके अंदर इतना चंडाल को पकड़कर मैं चलते रह रहे, वो रियलाइजेशन की वजह से तब वो फिर सही दिशा में वो ध्यान शुरू करता है बदलने के लिए। मतलब जब तक इंसान बदलता नहीं है तब तक उसका अंदर चेंज नहीं आएगा, कितना भी ट्राई करते रहो, हम कितना भी ट्राई करते रहो दूसरों को बदलने के लिए, ये इम्पॉसिबल है। क्यों? श्री कृष्ण जी अर्जुन को चेंज कर सकता है, बट नहीं किया ना, अपो दीपो भव अर्जुन, उद्धरे आत्मा नाम अर्जुन। बुद्ध भगवान भी कुछ कर सकता है, बट लास्टली टोल अपो दीपो भव, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, change yourself, change yourself, that's all, nobody can do nothing here. फ्रेंड्स एक चीज अच्छे से समझना कि इधर दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। आदि शंकराचार्य जब वो उनका शिष्य बोलता है माय डियर फ्रेंड्स ऑल आर वेस्टिंग एवरीथिंग, ऑल आर वेस्टिंग, ऑल आर वेस्टिंग, हर बार आदि शंकराचार्य बोलते रहेगा, तो शिष्य को समझ में नहीं आता क्या वेस्ट कर रहे भगवान, ये लोग क्या वेस्ट कर रहे हैं, हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं क्या, सब खर्च कर रहे हैं, सब खर्च कर रहा है, ऐसा बोलता रहता है, गुस्सा करता रहता है। तो उनका शिष्य ने बोला क्या खर्च कर रहे हैं लोग, क्या खर्च कर रहे हैं आप, इतना फील हो रही है कि, वो बोलता है ये खर्च पैसा का बात में नहीं बोल रहे, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द मनी, आई एम सेइंग अबाउट द टाइम, लाइफ टाइम, दे आर वेस्टिंग समय, समय को खर्च कर रहे हैं, सब लोग समय को खर्च कर रहे हैं, सब लोग समय को खर्च कर रहे हैं, दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द समय। इसलिए वशिष्ठ जी ने रामचंद्र से हर बार एक चीज बोलते रहेगा, रामा 3 विषय के बारे में ध्यान से रहो, 3 विषय, दिया हुआ वचन, एक वाग्दान दिया हुआ तो वो फिर वापस नहीं आएगा, और मुंह से आ गया गाली, किसी दूसरों को गुस्सा किया, बात चला गए, दिया हुआ वचन, किसी को प्रॉमिस किया,
ये फिर वापस नहीं आएगा, ध्यान से रहो। 3 things never come back। किसी को वाग्दान किया, वाक को दान किया, है ना, दान का चीज फिर वापस नहीं आएगा ना। बहुत लोग सोचता है मैं दान किया, इसका पुण्य वापस आना है। सोचना मत, ऐसा वापस नहीं आएगा। सोचने से ये और नहीं आएगा। इसका क्लियरली आपको मालूम होना है तो लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड हिंदी में है वो बुक, आध्यात्मिक जगत का नियम। वो बुक में देने का समय भी कैसा निर्गुण स्थिति में रहकर देना, वो बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया। मुझको अच्छा लगा है वो जब पढ़ने का समय। सो 3 things which never come back, उसमें दिया हुआ वचन, कुछ भी वाग्दान दे दिया वो वापस नहीं आएगा। रामा ध्यान से रहो। किसी को गाली दिया वो भी वापस नहीं आएगा। हम क्या करेगा? गुस्सा करेगा, सॉरी 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 बोलता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, कुछ होने के बाद सॉरी का बात ही नहीं है। देयर इज नो सॉरी इन द यूनिवर्स। स्टार्टिंग ओनली बी केयरफुल। स्टार्टिंग ओनली बी केयरफुल। क्योंकि एक बार सॉरी बोलने के बाद हम बोल दिया, उनका बड़प्पन से वो हाँ हाँ बोल दिया, बस जीवन भर याद रखेगा वो उस समय मुझको ऐसा गुस्सा किया बोलकर। कितना दिन याद है उनका अंदर, उतना दिन आपका क्षमा नहीं मिला एक्चुअली, है ना। सो देर इज नो सॉरी। सॉरी के पहले ही, इसलिए हर एक चीज ध्यान से करो। वाग्दान देना है, सोच समझ कर दे दो। कर पाएगा तो दे दो, नहीं है तो सॉरी स्वामी जी मैं नहीं कर पाएगा ये चीज, बता दो। कौन क्या सोचेगा निकालो वो बात, बिकॉज ये चीज हमको बॉन्ड करेगा। कार्लोस कास्डेविल से एक बार वाग्दान किया तो, कमिटेड हो गया तो, ये वाग्दान आपको हर बार रुकाता है। इसमें अलग टाइप का वाग्दान के बारे में कार्लोस कास्डेविल, डॉन युवान उनका गुरु बताता है सेपरेट रियलिटी बुक में। मतलब हमारा, हमको नहीं मालूम, कभी कभी एक एक चीज हमको पकड़ कर नहीं छोड़ता है। ये कैसा होगा मैं बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। जब कार्लोस कास्डेविल बोलता है उनका डॉन युवान एक चीज में फंस गया, वो कभी ऊपर नहीं आ पा रहे, उसको चेंज नहीं कर पा रही है। तब वो उनका गुरु डॉन युवान के पास जाकर बोलता है कि मैं क्या करूं, ये चीज मुझको पकड़कर नहीं हो पा रही, ये क्यों ऐसा हो रही है। तब डॉन युवान बोलता है ये आपका संस्कारों से आ गया। कब का संस्कारम? ये पूर्व जन्म का एक रहता है, इस जन्म का रहता है। इस जन्म में कभी आप वाग्दान किया, वो चीज की वजह से आप इसको पकड़कर ऐसा ही आप अंदर चलते रह रहे। शायद बाहर आप भूल गया, बट अंदर वो वाग्दान आपको पकड़ गया। सो क्या है मतलब, वो उनका बचपना दिखाता है। जब वो बच्चा है, कार्लोस कास्टेडिया, एक दोस्त को इनकी वजह से दर्द आ गया, इनकी वजह से वो दोस्त परेशान हो गया, और वो कुछ हुआ दोनों के बीच में। और ये खुद वाग्दान लेता है कि मेरा जीवन में कभी भी मैं ऐसा चीज में फंसूंगा नहीं, ऐसा चीज करता नहीं। वो क्या सोचा है, मैं पूरा जीवन में ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा लोग के साथ रहकर मैं ऐसा कुछ भी देना ये सब नहीं करूंगी, और ये जीवन में मैं ऐसा ही रहूंगी। उस समय सिचुएशन के लिए वो सोच सकता है, बट वो क्या किया, अपने आप को अंदर एक वाग्दान किया मैं जीवन में। बहुत लोग ये करता है, बहुत लोग, किसी को भी ये वाक शक्ति मालूम नहीं, इसलिए अननेसेसरी संकल्प, अननेसेसरी ये छोड़ता है। भूल गए ये यूनिवर्सल का कल्प वृक्ष के साथ है, इसलिए जीवन भर कोई दुख आ गया, सोचता है मेरा जीवन भर यही दुख है,
एक बार 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 10 बार आ गया। क्या जीवन अब से खत्म है? और 100 साल का जीवन में ऐसा सोचता है मैं जीवन भर मेरा जीवन ऐसा ही रह रहे। उसको मालूम है क्या फ्यूचर क्या है? बट वाक से एक शब्द आ गया कि जीवन भर। मैं ना हर समय मेरा जन्म ही दुखी जन्म है। मेरे साथ कभी भी ऐसा ही होता है। क्या क्या मालूम है आपको? कभी भी बोल दिया पूरा लाइफ लॉन्ग। ऐसा सोचता है कि हर समय मेरा हालत ऐसा ही चल रहा है। तो क्या हो रही है? ये यूनिवर्स का वृक्ष का नीचे क्या हो रही है? वैसा ही हो रही है। हर जगह यही टाइप, हर जगह मुझको कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसा बदलो ये लोगों का, शब्दों का। मेरा हस्बैंड बदलता नहीं, कभी भी बदलता नहीं, मैं तब क्यों आई मेरे पास? एक तरफ आता है कि मैं ध्यान सिखा दो ना, मैं मेरा लाइफ को बदलना है। क्या बदलना है? मेरा हस्बैंड के चेंज होना। तो चेंज होने के संकल्प में, और वो क्या बोलता है? मैं बोलता हूँ, कल एक हुआ, मैं बोला आप ऐसा करो, नहीं मैम वो नहीं बदलेगा। तब क्यों मेरे पास आ गया? तब नहीं बदलेगा, आप इतना अच्छा थॉट है तो देन व्हाई टू चेंज? एक्सेप्ट। वो नहीं बदलेगा, एक्सेप्ट करो, तब क्यों रो रही है? वो बदलना के सोच क्यों रखा है? दो ऑपोजिट है ना। एक तरफ आपका दिल में दिल क्या है, वो नहीं बदलेगा। एक तरफ आपको क्या चाहिए, उसको बदलना चाहिए। ये दोनों कैसा सेट होगा? ये हर जगह होते रह रहे हमारे साथ, क्योंकि हम भूल गया वी आर अंडर द यूनिवर्सल गिवर। वो सब चीज देते रहेगा, और हमारा अंदर ये दो चीज है, ये दोनों सेट नहीं होगा। कब बदलेगा? इसलिए जीवन भर रोते रहेगा। है तो इस तरफ जाओ, हाँ बदलेगा, उस थॉट से चलते रहो। नहीं तो नहीं बदलेगा, छोड़ दो बोलकर चलते रहो। ये दो गेम, एक तो चाहिए बट बाहर के लिए नहीं चाहिए, नहीं तो बाहर के लिए चाहिए अंदर नहीं चाहिए। ये दो तरीका क्यों? समझ गए? सो ये दो तरीका नहीं चलेगा दोस्तों। इधर दो बात नहीं है, एक ही बात है। ओनली ओनली एंड ओनली एंड ओनली वन थिंग। कुछ भी वाग्दान करो, अपने ऊपर हम वाग्दान करता है। और वो क्या किया? कार्लेस कास्टा को पकड़ गया। डॉन युवान बोलता है, वो छोटा उम्र में अपने ऊपर आप वो वाग्दान किया ना, मैं जीवन में कभी ऐसा नहीं करूंगी, किसी को हेल्प मदद नहीं दूंगी, और इसकी वजह से आप उसी में फंस गया। पहले वो वाग्दान को रिलीज करो। यू रिलीज फ्रॉम योर ओन बॉन्डेज। सो कैसा है? बोलता है कुछ नहीं, आप किस तरीका में मैं जीवन भर रहता हूँ, उसी तरीका में बैठकर आराम से सोचो और बोलो कि मैं उस वाग्दान से अपने आप को रिलीज कर रहे। हमारा तरफ, हमारा गांव का तरफ आंध्र में एक चीज बोलता है, छोटे का उम्र में हम खेलते रहेगा, मेरा भैया लोग हम प्रॉमिस, हाँ प्रॉमिस, उसको वोट्टू बोलता है, वोट्टू। प्रॉमिस नहीं चाहिए तो ये प्रॉमिस को ना नीचे रख दिया, वोट्टू तीस गट में बैठे सो, अब प्रॉमिस नहीं है। समझ गए? ऐसा ही ये प्रॉमिस को निकाल कर गिरा दो। नहीं बाबा मैं नहीं कर पा रही, क्षमा करो। अपने आप को बताओ, दूसरों के भी बोल दो, हाँ मैं उस समय उस स्थिति में बोल दिया मैं कर सकता हूँ, शायद मैं नहीं कर पा रही है। डोंट लॉक योर सेल्फ, क्योंकि एक बार देकर छोड़ दिया मतलब वो वापस नहीं आएगा, और उसमें हम भी गिर जाएगा। किसी को गुस्सा किया वो भूलेगा नहीं, सॉरी बोल देगा, बट मन में मन रहता है कि उस दिन मुझको जब गया तो गाली दिया यार। और कभी ना कभी मुंह से वो बोलेगा, सॉफ्टली और हार्डली कुछ भी हो, वो याद करेगा। और हमको ये प्रॉब्लम भी नहीं, वो याद नहीं किया तो भी हमको चित्त है ना, चित्रगुप्त, वो लिखते रहेगा, उधर याद रहेगा, डोंट वरी।
सो दिया हुआ शब्द, दिया हुआ वचन, दूसरा में क्या बोला? 3 चीज वापस नहीं आएगा। समय, टाइम, ये समय भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि इस समय के पहले जब हमारा समय चलते रह रहे, कुछ भी 1 मिनट वेस्ट हो गए तो भी वो फिर वापस नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए आदि शंकराचार्य ने बोला सब चीज खर्च कर रहे ये लोग, सब चीज खर्च कर रहे। शिष्य ने बोला क्या खर्च कर रहे? समय। जब आदि शंकराचार्य ने वाराणसी का, काशी का छोटे छोटे गलियों में चलते रह रहे, वो कि एक रूम का अंदर देखा, एक घर का अंदर एक 90 साल का बुजुर्ग आदमी ने, आंख भी ठीक से नहीं दिख रहे, वो पांडित्य के लिए वेद को एक दूसरों का साथ एक ये रहता है, कौन बड़ा है आपका और मेरा, कौन जीतेगा, ऐसा एक कार्यक्रम है। उसमें अटेंड करने के लिए वो पूरा पद्यम को, पूरा ये सब चीज को, शास्त्र को वो छोटा सा दिया के पास रखकर पढ़ाई कर रहे। तब आदि शंकराचार्य वो देख देख कर उनका आंख से आंसू आते आते वो बोलता है भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निधे काले नहीं नहीं द्रुक्यते दुःखंगरने। मतलब आपका लास्ट मोमेंट्स आते रह रहे तो भी आप अब तक इस समय को सही से इस्तेमाल नहीं किया, अभी भी वो चीज पढ़ रहे और असली चीज को भूल गया। किस चीज ने? अब तक आपको होना है, आपको आना है, अभी आपको एक दूसरे के जीतने का क्या बात है? क्यों वो जरूरत? अपने आप को नहीं जीता, आप दूसरों को ऊपर क्या जीतना? जीत का बात ही नहीं है इधर इस दुनिया में। एक दूसरे से जीतना, क्या जीतेगा? वो भी आप ही है ना। आप आपका ऊपर जीतेगा क्या? देर आर नो 2%, देर इज वो 1%। मरने के पहले ये चीज तो सीखना ही जाना है ना। मरने के पहले बिल्कुल वो अद्वैत के बारे में सीख कर, रहकर, प्रैक्टिस होकर, ट्रेंड होकर मरना पड़ेगा। तब इतना बुजुर्ग आदमी 90 साल आ गया तो भी यही बात कर रहे। व्हाट इज दिस? आदि शंकराचार्य भज गोविंद तब बोला ऑल आर वेस्टिंग टाइम, समय 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 वेस्ट कर रहे। किस समय फिर वापस नहीं आएगा, वो समय को वेस्ट कर रहे। बचपन में हमारा समय है, उस समय का बात अब आएगा क्या? वो बचपन फिर वापस आएगा क्या? टीनेज में पढ़ाई करना, पूरा चीज करना, वो चीज भी वापस नहीं आएगा। किस समय चलते रह रहे, किस उम्र चलते रह रहे, वो फिर वापस नहीं आ रही है। इसलिए हर समय वो चीज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और उसमें क्या है? आदि शंकराचार्य ने बोला वो चीज करो किस चीज ने आपको आखिरी समय तक, अगले जन्म में भी आपको काम आ जाएगा। वो चीज को इंसान कुछ भी नहीं साधना कर रहे। व्हाट इज दिस? ही क्वेश्चनड। इसलिए वो बहुत चिंतित होता है लोगों को देखकर, ये लोग सब चीज वेस्ट कर रहे। पैसा का बात नहीं, समय का बात बोला। सो once if you waste the time, again they will not come back. I want relaxation, I want rest. हमको इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, रेस्ट इज टू रस्ट। व्हाट रेस्ट यू वांट? रेस्ट इज टू रस्ट, और कुछ नहीं होगा इसको साथ। टाइम पास, मुझको टाइम पास नहीं हो रही है, मतलब वो बेकार आदमी है। कोई भी बोलता है अरे मैं उसको टाइम पास, रिसेंटली मेरे बेटा ने एक गेम को डाउनलोड किया, मैं वो गेम के बारे में रिव्यूज देखते रह रहे। हर रिव्यू में ब्यूटीफुल टाइम पास गेम, ब्यूटीफुल टाइम पास गेम, इट इज
रियली वी आर एंजॉइंग इट, मतलब दे आर वेस्टिंग इट। वो गेम में बैठे तो उनको टाइम पता नहीं चलेगा, टाइम पास मतलब जीवन पास हो रही है, वेस्ट। पास्ट इज वेस्ट, future is ignored. If you think about the future, it is ignorance. If you think about the past, when you are past, it is waste. Present is the present gift. भूल गया, टाइम पास के लिए खेल रहे, टाइम पास के लिए बात कर रहे, रिलैक्सेशन के लिए करो। अरे थोड़ा देर रिलैक्स के लिए थोड़ा खेलो, सिनेमा देखो, मजा करो, सब चीज। टाइम पास करने के लिए क्यों, टाइम वेस्ट करने के लिए दिया हुआ क्या लाइफ? ये समय फिर वापस नहीं आएगा ना, तो कैसा कर सकता है इसको वेस्ट? सो समय एक चीज है, फिर वापस नहीं आएगा। दिस इज द सेकंड वन। नो वेस्ट ऑफ 1 मिनट ऑल्सो। वशिष्ठ जी ने बोला, रामा एक क्षण भी वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट गेट टाइम अगेन। कल मर गया तो मैं 21 डेज क्लास लेने का समय हर रोज मेरा ये फीलिंग है, आज मैं क्या देना है। कल मर गया तो मुझको आखिरी क्षण में वो संतुष्ट रहना है ना, मुझको कितना मालूम हो वो दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं। लेस लगेज मोर कंफर्ट माय डियर फ्रेंड्स, जर्नी इज जर्नी। लेस लगेज मोर कंफर्ट, कितना ब्यूटीफुल वर्ड है ये वर्ड, मैं बता नहीं सकता। हर जगह ये काम आता है, क्योंकि जब मैं सोचा लेस लगेज मोर कंफर्ट, मुझको हर जगह यही दिखा। दूसरा जन्म तो इस जन्म पर आना है, लेस लगेज रखो, मतलब ये संचित कर्म को ज्यादा बढ़ाना मत, फिर खाली करने के लिए टाइम लगता है। लेस लगेज, इधर मोर कंफर्ट जी सकता है इस जन्म में, लेस लगेज पास्ट लाइफ में है। तो यदि नॉर्मली एक जर्नी करना है, इधर से दिल्ली जा रही है, 10 बैग रख कर जाओ, क्या होता है? मर जाएगा। ये सब नीचे उतर कर ऊपर रखने के लिए पूरा समय हो गया। तो अच्छा से है, अच्छा से एंजॉय करना है। एक्चुअली जर्नीज में जेंट्स बहुत एंजॉय करता है, 2-3 पैंट रखता है, 2-3 शर्ट, हो गया काम। लेडीज के लिए 10 बैग और मेकअप किट, वो किट, ये किट। नमस्कार बाबा। सो ये एक्सपीरियंस में बताऊंगे, रियली विल एंजॉय। मुझको बहुत बड़ा लेसन भी हो। एक बार हम नंदा सार से हिमालय यात्रा के लिए गया, और उधर हैदा खान बाबा के आश्रम के पास 3 दिन रुका है। एक दिन क्या किया, प्रथम कैलाश पर्वत पैदल से ऊपर चलना। वो बहुत दिखता है यही है बोलते रहेगा गाइड, बट चलते रहो। एक हम पहले जाने के पहले रात डिसीजन हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब लोग उठकर 8 बजे तक चलना शुरू करना, नहीं तो वापस आने का समय लेट होगा। और हिमालय जंगल में क्या होता है, 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा, 5:30-6 होने तक बहुत अंधेरा होता है, हमको रास्ता दिखता नहीं, पूरा जंगल है ना पहाड़ के ऊपर, इसलिए जल्दी जाकर जल्दी वापस आना, वो भी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कल इतना बड़ा सुबह से रात तक पर्वत का ऊपर जाना है, उधर कुछ नहीं मिलता सोचकर हम पूरा बैग खाने का, पानी का, जूसेस, छोटा पॉचेस, बीच में बहुत चीज से भरा दिया बैग्स को, पीछे लोड 3 वाटर बॉटल्स, और मेरा पीछे बैग है। एक्चुअली वो गांव वाला ने हमको गाइड जैसा कोई कौन आने वाला है वो बता दिया, आप कुछ भी लाना मत, सिर्फ ऑरेंज का छोटा छोटा ये रहता है जैसा ऑरेंज शेप का, और नहीं है तो 2 ऑरेंज छोटा, बस पानी का भी जरूरत नहीं, आप लाना मत बोला। हम नो ये ऐसा ही बोलेगा, बीच में भूख लगे तो, बीच में पानी नहीं मिले तो, रामा हमको स्टार्स दिखा है। 1 किलोमीटर भी नहीं ऊपर चढ़ा, एक चीज भारी लगना पड़ी। 1 वाटर बॉटल निकाल दिया, 2 वाटर बॉटल निकाल दे, पानी किधर भी मिलता है छोड़ दो पानी, हो गया। थोड़ा दूर के बाद एक छोटा सा गांव आ गया, खाने का सब चीज एक को देते रह रहे,
हो गया, आधा बैग खाली किया बिना खाकर। और थोड़ा दूर जाने के बाद ना ये भी भारी लगा है। मैं वो गाइड से बोला आपको 100 रुपया ज्यादा दूंगी, थोड़ा ये बैग पकड़ो क्या। बैग भी दे दिया, सिर्फ एक वाटर बॉटल और छोटा सा ऑरेंज, ये दो, एक तरफ ऑरेंज पॉकेट में है, एक वाटर बॉटल और एक हाथ में एक लकड़ी, ऊपर चढ़ने के लिए हमको सपोर्ट चाहिए। थोड़ा दूर के बाद ये वाटर बॉटल भी मुझको बहुत भारी लगा है, मेरा ऊपर ये चुन्नी भी भारी लगा है। ये चुन्नी को निकालकर मम्मी को दिया, स्कार्फ जैसा पहनो बोलकर, ये वाटर बॉटल भी वो आदमी को दे दिया। सिर्फ वो ऑरेंज को एक टुकड़ा लेकर मैं मुंह में रखकर बाकी सबको देकर, तब मुझको थोड़ा रिलैक्स लगी। मैं पूरा हाथ खाली है तो तब चढ़ पाई। तब बीच में एक जगह बैठकर तब सोचा, दिस इज व्हाट लेस लगेज मोर कंफर्ट माय डियर फ्रेंड्स। हम भी यही कर रहे, हमको हम क्या करता है, क्या होता है, फिर मिले तो ना मिले तो बोलकर ज्यादा लगेज पीछे रखकर चलते रह रहे, नहीं चढ़ पाएगा। ये वो कैलाश पर्वत से बड़ा पर्वत है, लाइफ का पर्वत। इसमें लगेज क्या है, हमारा बॉन्डेजेस, हमारा कर्म का फल, हमारा सोच, हमारा वाग्दान, सबको बताएगा, ये करेगा वो करेगा, वो सब हमारा इमोशन सब हमको पकड़कर लगेज रूप में पीछे आते रह रहे। जब तक ये लगेज कम नहीं होता तब तक ये जर्नी सीधा सीधा आरामदायक साफ नहीं होता। देखो, एक जन्म से दूसरे जन्म आने से भी लेस लगेज चाहिए। इस जन्म में मोक्ष का स्थिति जाने का चाहिए तो भी एक एक चीज को छोड़ना चाहिए। कितना सालों से हम पकड़ गए, सब चीज को छोड़ना चाहिए। ये सब चीज को छोड़ने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। वशिष्ठ जी ने एक बात बताता है, एक्चुअली ये सब चीज किधर रहता है कि हमारा कारण शरीर में बीज रूप में ये सभी चीज अंदर है। किस जन्म, लास्ट जन्म में हमको किस चीज से सीखकर पकड़कर आ गया, वो लास्ट जन्म का चीज से अब इस जन्म शुरू होता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पिछले जन्मों का संस्कारों इस जन्म का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पिछले जन्म में एक चोर हो, इस जन्म में छोटे का उम्र से अच्छा फैमिली में जन्म लिया, बट वो चोरी का बुद्धि आ जाएगा। क्यों? वो संस्कार अब तक छोड़ी नहीं। ये संस्कार किधर घुसकर है, कारण शरीर में है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, इट विल बी इन द काजल बॉडी, कारण शरीर। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी ये बहुत अच्छा चीज है कि इस फिजिकल लाइफ में कुछ भी बदलना है तो इसका रिजल्ट, इसका मूल हमारा कारण शरीर में रहता है, उधर जाकर बदलना पड़ेगा। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो फिजिकल लाइफ में दिख रहे, इसका रीजन किधर रहता है, कारण शरीर में रहता है, नॉट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। हम क्या कर रहे, चाबी एक जगह गिरा दिया और ढूंढना एक जगह। एक आदमी ने चाबी ढूंढते रह रहे, सब लोग आकर उनके साथ चाबी ढूंढते रह रहे बाहर रोड का लाइट का नीचे। और इसमें एक होशियार आदमी बोला, आप चाबी किधर खो दिया? मेरे घर में खो दिया, घर में अंधेरा है, नहीं दिख रहे, इसलिए बाहर लाइट है ना, इधर आकर ढूंढते रह रहे। हम सब वैसा करते रह रहे, एक जगह छोड़ दिया और एक जगह ढूंढते रह रहे। आंसर एक जगह है, बीज एक जगह है, और वृक्ष को इधर काटते रह रहे। हमको नहीं चाहिए तो बीज के पास, वो रूट के पास पकड़कर
खींचकर फेंकना पड़ेगा। कितना भी बाहर ढूंढो हमको नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज समवेयर, कारण शरीर में है। पूर्व जन्म का संस्कार हर चीज कारण शरीर में है। सो उधर जाकर ढूंढना, उधर कैसा जाना है, विचार। आई टोल्ड यू बिफोर, विचार करो, गो गो गो, ढूंढते रहो। वाई, क्वेश्चन वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पिरिचुअल जर्नी। वेयर, वाई, हाउ, मेरे पास ये प्रॉब्लम क्यों आ गया, क्यों, वाई, क्वेश्चन करो। और वेयर द सॉल्यूशन इज, ढूंढते रहो ढूंढते रहो। गुस्सा आ गया, मुझको क्यों गुस्सा आ गया, किस कारण की वजह से गुस्सा आ गया, क्या मुझको ये नहीं है क्या, मतलब मैं मतलब हर एक पॉइंट के लिए क्वेश्चन करते रहो करते रहो करते रहो। यू विल गो टू द सीड, वो मूल के पास जाएगा। और इसकी वजह से मेरे अंदर ऐसा फीलिंग्स चल रहे, तो आई शुड चेंज दिस। जब पकड़े तो हो गया, यू विल पुल इट। इसलिए कारण, व्हाट इज द रीजन, कारण, कारण शरीर में ही आपका आंसर है। कुछ भी रीजन आ गया, कारण क्या है, मतलब कारण शरीर में है। ढूंढो, जाओ, विचार करो, गो बैक, क्वेश्चन 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 योरसेल्फ इज द वेरी ग्रेटेस्ट पॉइंट टू कैच द पॉइंट। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रही है मेरे साथ, बार बार ऐसा क्यों आ रही है, ऐसा टाइप ऑफ विचार, ऐसा गुस्सा, ऐसा दुख, इस दुख आने का कारण क्या है। इतना मालूम होकर भी मेरा आंख में पानी क्यों आ रही है, पकड़ना, तब समझ में आ जाएगा मैं वो पर्सन से बहुत अटैच्ड हूँ। इसलिए जब अटैचमेंट है, ज्यादा अटैचमेंट है तो ज्यादा दुख पहुंचेगा। वो लोग पॉजिटिव है तो बहुत खुशी आ जाएगा, तब मना किया तो बहुत दुख आ जाएगा। मतलब आई एम कैचिंग समथिंग टाइटली मेरा बोलकर, इसकी वजह से ये सब है। तब उधर छोड़ो, सब इधर दुख खत्म। रीजन, वी वांट द रीजन। सो ये कारण को पकड़कर चलते रहो, तब यू विल गेट द असली पॉइंट, देन वी कैन चेंज। हम पहला बोला है ना, खुद वी अपोदीप भव, मतलब यू कैन चेंज योर रियलिटी। उद्धरे आत्मानम, ओनली वी कैन, हम अपने खुद को, आत्मा को हम खुद उद्धरण कर सकता है। क्योंकि जब अर्जुन ही नहीं पकड़ पा रही है, इतना कृष्ण भगवान के साथ है, जब खुद नहीं पकड़ पा रही है आपको मन को, मैं कैसा पकड़ो आपको मन को, आप ही नहीं कर पा रहे तो मैं कैसा करूं। आपको ही खुद को मुश्किल है तो दूसरों को आसान नहीं रहेगा फ्रेंड्स, दूसरों का और मुश्किल रहेगा। समझ गए, आपका घर में ही आपको चीज समझ में नहीं आए तो दूसरों में आकर क्या समझ सकता है, उन लोग को और मुश्किल लगेगा, तो घर उसका नहीं है। इसलिए अब खुद का घर में खुद पकड़ नहीं पाए तो, खुद का जन्म, खुद का कर्म, खुद का चीज खुद नहीं पकड़ पाए तो दूसरों का कर्म, दूसरों का जन्म, दूसरों का चीज वो आकर हमको कैसा कर सकता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं कर पाएगा। सो लेस लगेज, मोर कंफर्ट। कितना कितना लेस लगेज रहेगा, मोर कंफर्ट रहेगा। इसलिए हर समय याद रखना है, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। मतलब 3 चीज को ऊपर ध्यान रखना है। वो क्या है, हमारा शब्द बाहर आ गए, चला गए तो नहीं आएगा। दूसरा समय, इस समय कुछ भी गया तो नहीं आएगा। और वशिष्ठ जी ने और एक बोलता है, एक बाण को छोड़ दिया तो वो यारो फिर वापस नहीं आएगा। मतलब यारो मतलब यारो नहीं, वशिष्ठ जी का है एक्शन, कुछ भी एक्शन हमारा अंदर से बाहर आ गया। और एक चीज वो क्या बोला है, व्हाट यू डू बी केयरफुल विद द ड्रामा। ध्यान रखो, कुछ चीज करने के पहले सोच समझ कर करो, ताकि एक बार आपका हाथ से होने के बाद
उसका एक्शन, रिएक्शन, उसका रिजल्ट सब चीज लेना पड़ेगा। वो क्या किया वो वापस नहीं, यू कांट चेंज एनीथिंग, यू कांट चेंज एनीथिंग। जब रामा को भी असंभव बोला है तो सब किसी को भी संभव नहीं। इतना गुरु क्लियरली बोल दिया, इट इज इम्पॉसिबल रामा, इफ यू लेफ्ट समथिंग इट विल नॉट कम बैक, इट इज डिफिकल्ट, इफ यू ओपन योर माउथ, कुछ चीज बोल दिया, इट विल नॉट कम बैक, इफ यू वेस्ट द टाइम इट विल नॉट कम बैक। इसलिए कम लगेज रखो, मोर कंफर्टेबल रहो। ये कम लगेज के लिए वर्कआउट करो, कैसा ज्यादा कर्म नहीं रहना। मरने के पहले हम कितना दिया, मतलब लास्ट मरने का समय हमारा अंतिम में क्या है, दैट इज आवर लास्ट एंड दैट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप टू द नेक्स्ट लाइफ। That will be our first step to the next life. Very important point ये चीज, that is called samskaras. This is called मलयाला स्वामी, जैसा वो छोटा का उम्र से जैसा बढ़ते रह रहे, वो एक गुफा में जाकर तपस्या किया। उसको कोई नहीं बोला तपस्या करने के लिए। वो जब कोई भी उनका डिसेबल्स उनसे पूछा है आप क्यों तपस्या किया, बोलने से वो बोला है कि मेरा पास्ट लाइफ में मैं मरने के पहले उधर तक आ गया, इसलिए वो पकड़कर इस जन्म में जैसा मेरा होश आ गया मैं उस रास्ते में घुस गया। रमन महर्षि 7 इयर्स में वो ध्यान में गया, चला गया ध्यान के लिए, क्यों गया, लास्ट लाइफ उधर तक आ गया संस्कार उनका, वो स्थिति तक। इस लाइफ में वो कंटिन्यूटी है। एवरी लाइफ इज द कंटिन्यूटी ऑफ योर पास्ट लाइफ। ये चीज मालूम हो गया तो इस जन्म का संस्कार को कैसा उद्धार कर कर एंड का समय में हम किधर तक पहुंचना, क्योंकि ये पहुंचना नेक्स्ट लाइफ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। सो एवरी टाइम बी अलर्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, नो वेस्टेज ऑफ समय। इसलिए आदि शंकराचार्य इतना वेस्ट कर बोला, वशिष्ठ जी ने क्या क्या चीज नहीं मिलेगा ध्यान रहो बोला, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। और ये समय को ठीक से कैसा रखना, मतलब फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट डे से हम देखते रह रहे, 3 चीज मुझको हर बार टच हो रही है। विचार करना, कैच द पॉइंट बाय क्वेश्चनिंग, अभ्यास करना, एवरी टाइम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये वर्ड भी मैं बहुत बार सुनते जा रही है, मतलब मैं 21 डेज हमको ये सब्जेक्ट आने के लिए मैं 100 डेज से वर्कआउट कर रहे। मुझको हर एक ग्रंथ में, हर एक भाग में, हर एक गुरु का लाइफ में यही चीज फिर वापस आ रहे, मतलब देखो ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको, ये टाइम को, ये सबको अपने को चेंज करना है। कोई दूसरा नहीं बदल पाएगा, दूसरा चेंज नहीं कर पाएगा, चेंज खुद का अंदर से आना है। ये चीज कैसा होता है, मतलब सर्जन का सांगत्य से, वेरी क्लियरली बोल रहे, सत्संगत्य से। हम लास्ट टाइम भी यही चीज बता दिया, सर्जन का सांगत्य, साधु संत का सांगत्य का, सत्य और अभ्यास, ये 3 मिले तो सब चीज हो जाएगा, सत्य का मार्ग पकड़ पाएगा। ये चीज हम हमारा पहले क्लासेस में भी बोला, और फिर यही चीज के पास आ गया, समय को वेस्ट नहीं करना, अपने आप को चेंज करना। ये गत जन्म का संस्कारम अगले जन्म में आ जाएगा, तब ये संस्कारों को चेंज किया तो अब इसी वक्त, इसी प्रेजेंट में, व्हेन यू आर ट्रेनिंग हियर, दिस विल कम टू अवर नेक्स्ट लाइफ एज द स्टार्टिंग पॉइंट, नो टाइम वेस्ट। बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल बताऊंगे। ये संस्कार हम सबको, मतलब सत्संग, किसी
व्यक्ति का इंप्रेशन की वजह से वो चीज पकड़ गया तो हम बदल जाएगा। एक दिन कश्यकी एक राक्षस है। वो राक्षस क्या इंसान को कितना पीड़ित करना है उतना करना है। इसके लिए क्या किया, वो राक्षस ने तपस्या किया। राक्षस है ना, उसका बुद्धि भी राक्षसी जैसा रहता है। ये बुद्धि में भी वही चीज रहता है। बुद्धि ऐसा है इसलिए वो राक्षस है। एक्चुअली मेरा कहना, बुद्धि ठीक है तो राक्षस क्यों बन जाएगा, वो बुद्धि नहीं है। सो वो तपस्या किया, बहुत तपस्या किया, और तपस्या की वजह से यूनिवर्स मालूम है ना, वो कल्प वृक्ष कुछ भी दे देगा। ब्रह्मदेव ने आ गया और उसको तपस्या के लिए क्या चाहिए बोला, मुझको लोगों को कितना अच्छा पीड़ित करना है उतना अच्छा पीड़ित करना, उसके लिए मुझको वो शक्ति दो। मैं एक रोग हेल्थ प्रॉब्लम जैसा बदलकर सबका अंदर घुसकर उसको अंदर से के तकलीफ देना, क्योंकि वो बाहर से दे रहे हैं तकलीफ, अंदर से भी देना है। इनका इच्छा देखो कैसा है। और ब्रह्मदेव का क्या है, ये यूनिवर्स कुछ भी मांगेगा, आपका बुद्धि कर्मानुसार है ना, वो कर्म भी वैसा है अनुसार करेगा, बोलकर तदास्तु चाहिए ले लो बोलकर वो चला गया। वो अच्छा से सुबह का समय अनारोग्य का रूप में, रोग का रूप में पीड़ित कर रहे, रात का समय राक्षस का रूप में चलते रह रहे हर जगह। एक दिन क्या हुआ, एक पंडित उनका शिष्य के साथ दो लोग उस तरफ चलते रह रहे। जब चलने के समय ये उनको भी डरा दिया, वो डरी नहीं। वो बोला है हम बहुत लोग को ऐसे देखा है, हमको डर नहीं। बहुत लोग को निकल कर आ गया, डर का बात हमारे अंदर नहीं है। व्हाट डू यू वांट। जब वो डरी नहीं, ये राक्षस को लगा है किसके पास धैर्य रहता है बताओ, किसके किस व्यक्ति ने सब अज्ञानता को पार के उनके पास धैर्य लक्ष्मी रहता है। धैर्य, करेज। वो लोग डरते नहीं, राक्षस को भीकर रूप देखकर भी वो नॉर्मल है। तब वो बोला है यू आर सत्य ज्ञानी। ये ज्ञानी किसी चीज से डरता नहीं। रश्मि जी, you will ask me later, let me complete this। रश्मि जी, सो किसी चीज से डरता नहीं, और एक्चुअली only the person who knows the truth will be very courage। सो राक्षस ने, यस बॉस यू आर सुपर पर्सन, आपको भगवान कौन है मालूम हो गया, इसलिए आप किसी चीज से डरते ही नहीं। नहीं तो मुझको देखकर अब तक कितना सालों से सब लोग डर रहे हैं और सिर्फ आप अकेले व्यक्ति है अब तक नहीं डरा। शायद आपको सत्य मालूम है, बता दो मुझको सत्य। और वो राक्षस ने बोला है मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर दिया तो आई विल सरेंडर टू यू, अदरवाइज आई डोंट सरेंडर। वो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्या चीज है निश्चल रहकर चंचल रहते रहेगा, सब चीज मालूम होकर भी सीखते रहेगा, ऐसा क्या चीज है बता दो। दैट इज द क्वेश्चन। और ये गुरु और शिष्य ने बोलता है कि वो आत्मा परमात्मा, ये दो है, ये निश्चल रहता है आत्मा, बट ये शरीर से चलते रहेगा, चंचल रहता है। निश्चल स्थिति में आत्मा रहता है, शरीर से चंचल रहता है, मन से शरीर से, क्योंकि सब आत्मा है और सब चीज मालूम है, वो परमात्मा को भी मालूम है सब चीज, तो भी वो सीखते चलता है। अब हम सबके इस अंशात्मा से सब चीज मालूम होकर भी सीखते चलता है, सीखते जा रही है। देखो इधर वो परमात्मा ही अब तक सीखते जा रहे हैं, हम कितना सीखना पड़ेगा। So that God is learning everything from us, by us, even though he knows everything. And this Atma is very stable and making us unstable and taking all the wisdom from this all indriyas. So immediately वो कश्यप क्या किया, वो राक्षसी सरेंडर होकर यस यू आर वेरी करेक्ट। तब उनको लगा है दिस इज द राइट पाथ बोलकर फिर तपस्या किया।
घोर तपस्या के फिर ब्रह्मदेव आया है, तब बोलता है स्वामी जी मैं पहला क्या बोला वो गलत है, अब मुझको ऐसा शक्ति दो मैं सबको शांति देने का। ब्रह्मदेव एक मंत्र का उपदेश करता है और बोलता है ये करते रहो, किसको पीड़ित किया उसके पास जाकर ये मंत्र का उपदेश करो और वो ठीक हो जाएगा और आप मुक्ति पाएगा। देन वो क्या किया, अब तक कितना लोगों को पीड़ित गए उस लोग सब लोग को फिर सेट किया और वो मोक्ष में जाएगा वो राक्षस। मतलब वो बदल गया, किसकी वजह से बदल गया? सही लोग से इंटरेक्ट होकर, सत्संग से। ये गुरु और शिष्य के सांगत्य किया, जब इस सांगत्य में वो क्या किया, अपने गलतियों को पहचाना और खुद को सुधार दिया। दिस इज द पावर ऑफ सत्संग। अंगुलीमाला क्या है? एक राक्षस जैसा आदमी, जैसा बुद्ध भगवान को सांगत्य में आ गया वो कैसा बदल गया, फिर एक बुद्ध जैसा बन गया। वाल्मीकि कैसा आदमी है? चोर है, जैसा वो किस सांगत्य में किया, ऋषि लोग का सांगत्य में आ गया और जैसा ये आ गया ये एक योगी जैसा बदल गया। मतलब साधु सत्संग का इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग। सत्संग सत्य का सांगत्य, सत्य किसको मालूम है, वो लोग का सांगत्य करने से ये चेंज संभव है। क्यों? ये लोग नहीं बदलेगा, नहीं ये लोग कुछ नहीं करेगा, बट इनका सांगत्य की वजह से, जैसा ये सैंडलवुड का ट्री है उसके साथ एक नॉर्मल पौधा बगल से ऐसा आ गया, उसके साथ साथ बड़ा हो गया। आप इसको थोड़ा काट कर देखो, ये भी वही सैंडल का स्मेल आएगा। सांगत्य का महत्व इतना है। किस जन से सांगत्य करेगा उस क्वालिटी हम सीखेगा, क्योंकि मन और इंद्रियम हर समय सीखने के लिए तैयार है। ये लेते रहेगा ना, अच्छा जगह को अच्छा लेता है, बुरा जगह को बुरा लेता है वो, और हम चेंज हो जाएगा वैसा धीरे धीरे। सो अगेन हमारे पास क्या आ गया, इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ अगेन कम टू सत्संग, सत्य का सांगत्य करो, इंटरेक्ट विथ good things, good people, the people who know the real truth। तब हम एक दर्पण जैसा, एक मिरर जैसा अपने को पहचानता है, और वो पहचान की वजह से उद्धरे आत्मानम वी आर क्रिएटिंग, देन वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हमको तब समझ में आ जाएगा हम कैसा बदलना। ओके फ्रेंड्स, आज बहुत हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट्स हम सीखा है। सो एनी डाउट्स एनीबॉडी यू कैन आस्क नाउ। हम कोशिश करेंगे कि बदले। यस है बड़ा मुश्किल। यस सर। या मैम मैंने ये, अच्छा हाँ सर बोल लीजिए आप। जी बताइए। मैम मैं ये बोल रही थी कि आपने बोला कि वो राक्षसी ने इतने दिनों तक के ध्यान किया, फिर भी उसने वो जो मांगा वो दूसरों के लिए कष्ट मांगा, तो वो ध्यान में उसके विचारों की शुद्धि कैसे नहीं हुई? पर बाद में ये समझ, हाँ देखो बाद में समझ राक्षस में भी, रावण भी ध्यान किया, रावण ब्रह्मा है ओके, बट उनका पिछले जन्म का संस्कार, उनको सद्बुद्धि, इसलिए बुद्धि भी टू टाइप्स, सद्बुद्धि कुबुद्धि, मतलब which is not proper and which is proper। वो प्रॉपर कैसा बनेगा, सत्संग से करेगा। यदि रावण को भी छोटा समय से एक अच्छा सांगत्य मिल गया, वो सीता देवी को नहीं ले लेगा, सबको तकलीफ नहीं देगा। मतलब पूर्व जन्म का संस्कारों को सेट करना पड़ेगा। ओके, ध्यान कोई भी कर सकता है, राक्षस भी ध्यान किया, अच्छा लोग भी ध्यान किया। आपको बलि चक्रवर्ती मालूम है ना? बलि चक्रवर्ती को विष्णु क्या एक छोटा बाल का रूप में आकर उनको सिर के ऊपर ये रखकर उनको अंदर तक ये वामन अवतार में, ओके,
हाँ, उसको उसका अर्थ क्या है? एक्चुअली राम राज्य कितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा बलि चक्रवर्ती का राज्य भी है। बट बलि चक्रवर्ती बहुत दान किया, बहुत अच्छा किया, बट उनको क्या है, सब दान का चीज कमेंट उनका दिमाग में है। मैं इतना दान कर रहे, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना सबसे अधिक हूं, ऐसा कमेंट इधर आ गया। तब वो वामन अवतार में छोटा बाल का रूप में आकर उनको सिर को ये किया, मतलब क्या है, वाह भाई वाह, ईगो को चलिए खत्म किया। इधर आ, मैं तेरे को एक बात बता, बड़े से सीख गई है तो इधर एक पॉइंट भी है, पहले से क्यों नहीं एक करता है? चाइल्ड बन गया तो हम वो क्या सिर का करें? अहंकार खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बच्चा बन गया मैं तो, तो बड़ा हो गया था। समझ गए? वाह भाई वाह, हम लोग उधर ना कितने तो जड़े इसलिए कितना बुद्धि भी हो, ये सही संस्कार में रखना हो सबसे गया ज्यादा भाई। इम्पोर्टेंट है। समझ गए? यस मैम। या सो ध्यान किया तो, इसलिए ध्यान प्लस ज्ञान, 2 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान खाली करेगा एम्प्टी कप, एम्प्टी माइंड अगेन इट विल बिकम ए डेविल्स वर्कशॉप। पावर बढ़ेगा, बट अंटिल यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दिस पावर वी आर वेस्ट। इसलिए सब्जेक्ट वी शुड नीड सत्संग और स्वाध्याय, मिलकर चलते रहना। तू अभी ट्रेन सीधा कब जाएगा? 2 साइड सीधा है, तो एक तरफ भी ये हो गया, वो सीधा नहीं है। बी केयरफुल, वी शुड डू मेडिटेशन, साथ साथ हम सत्संग स्वाध्याय भी करना सेकंड पार्ट में। राइट मैम। अदरवाइज पावर है, गन है, वी डोंट नो किसको शूट करना, किधर नहीं करना, डेंजर। ओनली पावर इज एवरी टाइम डेंजर, पावर विथ विजडम इज द राइट पाथ। राइट। या यस मैम। मैडम जी, यस सर। ये शक्तिपात भी तो जो महापुरुष होते हैं या बड़े बड़े योगी होते हैं, वो अपने शिष्यों के ऊपर शक्तिपात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने भी विवेकानंद पर शक्तिपात किया, हाँ सर। और कहते हैं उनको जो गले का कैंसर था वो इसलिए था कि उन्होंने अनेक हजारों लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर लेकर के और Yes, उनको sir. उससे मुक्त किया। यस सर। ऐसे ही इस समय भी जो गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे पंडित श्री राम शर्मा, उनके पास में भी लोग जाते थे और उनकी इच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। तो हाँ। ये क्या चीज है? एक तरफ तो हम कहते हैं अप्पो दीपो भव, हम्म, आपको ही अपने लिए सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो हाँ, सर। दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? यस सर। एक्चुअली किस लोग ने पूरा चीज एकत्व का देख लिया, वो निर्गुण तत्व में आ गया, जी सुपर कॉन्शियस, द आई एम प्योर कॉन्शियस, वो लोग अपने अंदर वो शक्ति रहता है, वो बात जी। से भी, सोच से भी, थॉट से भी वो शुद्ध रहता है। मतलब वो ऊपर से गिरने वाला झरने जैसा, पानी ऊपर जी। से नीचे गिरेगा। जब उनका फ्रीक्वेंसी इतना हाई रहता है, कोई भी उनके पास गया, ऑटोमेटिकली उसका करुणा, उसका प्यार, उसका अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन दूसरों को थोड़ा वो एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है। समझ गए? वो शक्तिपात है, हाँ। ऑटोमेटिकली होता है। वो लोग जानबूझकर नहीं करता, बट ऑटोमेटिकली उनका वो कंपैशन, अरे मेरा, क्योंकि सब मैं जैसा देखता है वो लोग, अरे मेरा ये लोग तकलीफ में है, सो ऑटोमेटिकली उधर वो होकर वो शक्ति का प्रवाह होता है। बट ये किसके साथ होता है? हु आर कंप्लीटली इन दैट सुप्रीम कॉन्शियस, कंप्लीट अंदर कंपैशन, बॉन्डेजेस का ऊपर, बॉन्डेजेस से आउट हो गया, सब चीज में इस अहम आत्मा सर्वभूतानाम, ये चीज किसको समझ गया, किसको अंदर इतना भी लालच नहीं, किसका अंदर इतना भी दुख और कुछ भी नहीं है, वो लोग के साथ ये शक्तिपात ऑटोमेटिकली होता है। इसलिए आपके साथ में भी तो महालोग हुआ। आ गया, इसलिए महालोग कोई आ गया तो वो कोई बोलना है, सर आई डोंट नो, मैं हूं, मैं सबके साथ मैं हूं जैसा देखता हूं, और मैं ऐसा नहीं सोच रही मैं किसी को दे रही है, मैं अपने को दे रही है, अपने को बता रही है। पिता मैंने आपके ऊपर भी तो शक्तिपात किया। शायद कर दिया,
शायद जब नहीं वो जब वो शेक हैंड दे रही है, वो सबके जी। साथ गले दे रही है, वही चीज जी। वो कर रहे हैं। जी। तभी हम उनके पास गए तो संतुष्ट मिलता है। कितना जी। दुख में भी जाओ, पत्री जी के पास जाकर हमारा आंख से एक बूंद भी पानी नहीं आएगा, ये खुशी से जी। रहता है, क्योंकि उनका शक्ति हमारा आराम में किससे रह रहे ना, वो केंद्रित हो गई है, तभी उनके पास जाए तो एक संतुष्ट मिलता है। महायोगी लोग के पास गए तो वाह, वो तो कितना अच्छा रहे बाबा। ये क्यों मिल रहे? क्योंकि ऑटोमेटिकली हम वो चीज लेते रह रहे। वाइब्रेशन। बिल्कुल, वी विल कनेक्ट टू दैट एंड वी विल टेक इट आल्सो। मेरे से और कम लोग आ गए, मेरे से जाएगा, Yes. ये कोई रखने वाला नहीं, ये चलते रहेगा, क्योंकि जी। ऊपर का पानी नीचे ही गिरता है, देखो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। वैसा ही हमसे अधिक ज्ञानी, अधिक शक्ति, अधिक अंदर से वो कंप्लीटनेस, अंदर से दर्द, गुस्सा, ये सब रहने वाले के पास ऊपर कितना भी दिखो, हाँ, कोई शक्ति जी। बात नहीं, कुछ भी बात नहीं आएगा, पाप आएगा। समझ गए? जी ऐसा मैडम। व्यक्ति है तो आ जाएगा। जी। इसलिए हमारे लिए तो थोड़ा आप भी लोग वैसी हैं। हाँ, ये आपसे आपका हम लोग को मिल बड़प्पन। रहा है, आपसे हम लोग हमारे को लिए मिल आप रहा भी है वैसी मैडम। हैं। या मैम जी हम मैडम। सबको बुलाओ, हम सबके साथ हैंडशेक करो। यस सर। इस पूरे ग्रुप को बुला करके सबके साथ हैंडशेक कीजिएगा। तो मैं एक चीज बताओ, मैं कभी नहीं सोच रही मैं आपका दूर हूँ, नहीं मेरा दूर तो नहीं कॉन्शियस। है जी। नहीं दूर तो देखो नहीं हो जी। शक्ति, ये चीज कैसा होता है मैं बताऊंगी। कॉन्शियसनेस हील्स। जब मैं इधर हूँ भिलाई में, आप राजस्थान में हो, दूसरा जगह हो, दूसरे जगह से आप उधर जी। से इधर तक सुवर्णा मैडम के लिए सोच रहे, हाँ हाँ ऑटोमेटिकली मैं कितना दूर तक हूँ, इधर से आपका जगह तक मैं कनेक्टेड हूँ। अब किधर जी। है अलग? नहीं जी नहीं बिल्कुल कनेक्टेड है जी, इसमें कुछ वी आर कनेक्टेड एक्चुअली, इट इज हैपनिंग। ये फिर मैं शक्तिपात दे रही है, ये मेरा अहंकार हो जाएगा, आपका जी। अज्ञानता हो जाएगा। जी। वो नहीं, ऑटोमेटिकली होने का चीज को फिर बताने का जरूरत क्या? करेक्ट। वो ब्रह्मांड से शक्तिपात सबको हो रही है, और बहुत अच्छे से समझा किसके देते पास है, हम देते रह रहे। अमेरिका में कोई है मेरा एक दोस्त, वो सोचेगा स्वर्णा मैडम आपका वीडियोस भेजते रहो, मैं उनको देखना है, वो कनेक्टेड है। तो मैं अमेरिका जाने का जरूरत नहीं, दे आर कनेक्टेड। ऐसा ही मैं पत्री जी के बारे में सोच रहे, ही इज कनेक्टेड। डिस्कनेक्ट कैसा हो जाएगा मालूम? हमारा क्रोध और ये सब अहंकार ये सब रहे तो डिस्कनेक्ट। आई डोंट लाइक जोशी सर, चिची उनके बारे में नहीं चाहिए, तब क्या होता है ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्शियस डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब ऐसा चलने वाला एनर्जी डाउन हो गया। सो नो गुस्सा, नो एंगर, बिकॉज वी ऑल आर वन। सो शक्तिपात इज नॉट दैट किसी को देने का जरूरत नहीं, कौन वो सूरज जैसा बन गया, उधर से कांति सबको आ जाएगा। वो देने वाला भी नहीं, लेने वाला भी नहीं, उनका दृष्टि में सब एक है। हम सोच रहे वो महान है इसलिए दे रही है, एक्चुअली वो वैसा है, उसके पास कोई भी जाकर ले सकता है। समझ गए? जी। या और ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा दूसरा क्लास का रामता क्लास का समय हो रही है। कोई क्वेश्चन नहीं, आप अपने आप से ही क्वेश्चन करना है मैडम सब। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। हाँ फ्रेंड्स, बहुत थैंक अच्छा यू लगा। वेरी मच मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो कल हम नया सब्जेक्ट के लिए लाएगा, तब तक आप विचार करो। जी। रात का समय सोने के पहले जरूर बस अपने आप को पकड़ो। इसी तरीके से कनेक्टेड रहिएगा मैम। सो नाइस। या थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। लव यू ऑल। लव यू ऑल, बाय। लव यू।